Welcome to another episode, and today I'm in conversation with Dr. Chirayu Pamecha, a renowned spine surgeon of Udaipur and also the owner of Shri Ram Spine Hospital. He has built a reputation of treating complex spine conditions through advanced surgical techniques and personalized care. With a commitment to innovation and patient well-being, Dr. Chirayu Pamecha continues to be a leading figure in the spine surgeries. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan. First ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. Thank you so much, Dr. Chirayu Pamecha, for joining me today. Today's session I'm really looking forward to क्योंकि spine एक ऐसा segment है जिसके बारे में actually बातें बहुत कम होती है, but एक बहुत important area है. I mean, एक proverb है कि you're without a spine, so we know how important it is. Now, but when it comes to spine surgery or any surgery, वैसे fear psychosis है, लोग डरते हैं, and spine surgery का तो और भी ज़्यादा डर है. So क्या आपके पास patients, in spite of so much advancement, फिर भी do people come with a lot of fear about that surgery or just lack of awareness कि spine की क्या problems हो सकती है? So actually, spine surgeon, मैं तो spine surgeon हूँ. Yeah, of course. But you won't believe, मेरे 70-80% पेशेंट को मैं सिर्फ दवाई लिखता हूँ. अच्छा, मैं okay. उनको सर्जरी एडवाइस नहीं करता. So मेरी सबको इस मीडियम से एडवाइस है कि स्पाइन सर्जरी सेफ है. हाँ. और अब और सेफ होती जा रही है, राइट. लेकिन बहुत कम लोगों को सर्जरी की जरूरत होती है. तो अगर आपको स्पाइन की कोई बीमारी है, चाहे स्लिप डिस्क है या बैक पेन है या नेक पेन है, आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका, दीज आर कॉमन वर्ड्स हम अक्सर सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं. वर्टिगो, न जाने क्या-क्या वर्ड्स यूज होने लगे. आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, व्हाट्सएप पे देखेंगे, ये वर्ड सबको पता है. सो एटलीस्ट दैट पार्ट इज देयर. एक बेसिक अवेयरनेस आ गई. ओह यस, ऑफ कोर्स उसमें कई बार सोशल मीडिया से रॉन्ग इन्फो भी आती है, बट देन people are aware. लेकिन spine surgery last I would say 20 years, in 20 सालों में advanced training, more experience of course, technology of course. So उसने spine surgery की complications को बहुत कम कर दिया. Okay. Of course 100% तो complication free कुछ भी नहीं होता है. मैं यहाँ से कार से अगर घर जाऊँ तो शायद you never know. So I think yes, but your question is valid. कि अगर बाकी सब में कोई सर्जरीज में से चूज करें तो स्पाइन सबसे स्कैरी होती है. ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, हार्ट सर्जरी से सब बहुत डरेंगे. एंड दैट इज नेचुरल. अब मुझे भी अगर हार्ट सर्जरी करानी होगी तो शायद मैं डरूंगा. In spite of being a surgeon yourself, right. But then I think times are changing and they're changing in the right direction. Right. But sir, what are some of those early on symptoms जो generally लोग ऐसे नजरअंदाज कर देते कि अरे कमर का ही दर्द है, मैंने कुछ heavy उठा लिया था. Typically women में I'll say this because sometimes even I say अरे just could अरे कल ना मैंने ज़्यादा ही pull-ups कर लिए या कुछ heavy चीज उठा लिए. So do you think that we should ignore these or when should we stop ignoring them? So मुझे ऐसा लगता है कि ignorance तो is not a good idea. Yeah, it's never bliss. हाँ, it's never bliss. At times it may be, but अभी at least as far as spine is concerned नहीं. अगर आपको कोई भी symptom एक बार आए और within 24 hours to 48 hours चला जाए. Okay. और वापस नहीं आए. सपोज हम बैक पेन को ही ले लेते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको पेन हुआ है एंड देन वो ऑटोमेटिकली ओवर एक्सर्शन हो गया. एग्जैक्टली. आपने कुछ नहीं किया, आपने हॉट वाटर फर्मेंटेशन किया है, कोई फ्लेक्सॉन और टैबलेट खाए, ठीक हो गए, तो देन यू कैन स्टिल इग्नोर. ओके. लेकिन अगर वो सिम्टम बार बार आए, अगर वो सिम्टम कुछ ऐसी चीजों से आए जो कोई बहुत हैवी नहीं था, कि आपने कुछ ऐसा किया नहीं फिर भी आ जाए. ओके. एंड द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज अगर आपको कमर दर्द है या गर्दन में दर्द है और अगर वो दर्द हाथ में या पैर में रेडिएट कर रहा है, ओके, तो देन दैट इज अ रेड फ्लैग. आप प्लीज उसको किसी स्पेशलिस्ट को या उसको आप मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट इट. राइट. डोंट इग्नोर इट. सो सर पेन की भी डिग्रीज अलग होती है. समटाइम्स पेन वो एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है, समटाइम्स इट्स शूटिंग पेन एंड समटाइम्स इट्स जस्ट पेन like the word can prolong pain. तो कुछ उसमें भी people should be careful about. So pain per se, everyone has their own perception. Yeah, that's also. अगर मैं अपना पेन देखूं और हो सकता है कि मेरी एज का कोई और पर्सन हो, उसको टॉलरेंस भी सबकी अलग होती है. राइट. तो मैं पेन को एक बहुत वाइड वर्ड है, मेरे ख्याल से ये एक एपिडेमिक है बैक पेन. राइट. आप
मतलब दुनिया में हर इंसान को हाँ, कभी ना कभी होएगा, करेक्ट, एंड इट्स लाइक कोविड, इट्स जस्ट एवरीवेयर। एब्सोल्युटली, सो बैक पेन को इट्स अगर लाइक आप कॉमन कोल्ड राइट नाउ, लाइक यस इट्स वेरी कॉमन। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतने छोटे छोटे बच्चों को बैक पेन के साथ देखता हूँ, 12 So साल, when 10 साल। So is I it think because of that sedentary lifestyle? I think it's a combo of everything. हाँ. हम क्या खा रहे हैं, our sedentary lifestyle, gadgets, plus of course overweight, obesity. Oh, I was just going to come to that. Obesity is, I think, one of the main reasons. No, I think हमारे पुराने में कहता अरे ये तो बच्चा है, इसको खिलाते रहो, and once he's 17, 18, suddenly he's obese. Yeah. उसको नी इश्यूज चालू हो गए, उसको बैक इश्यूज चालू हो गए। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोटे बच्चों को डाइटिंग कराओ, बट देन डेफिनेटली अगर आप एक ग्रोथ पैटर्न चार्ट को रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हो, देन यू शुड टेक केयर ऑफ इट। वो उसके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट हिज स्पाइन। Okay. एंड जो आपने मेरे से पूछा था, सो मेरा ऐसा मानना है कि अभी वी शुड नॉट इग्नोर एनी सिम्टम्स। अगर वो रह रहे हैं एंड इफ इट इज देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो देन आप उसको प्रॉपरली इवेलुएट जरूर कराएं। वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज बैक पेन इज मल्टीफैक्टोरियल। ऐसा नहीं है कि बैक पेन आपको सिर्फ वेट उठाने से होगा, या इट कैन बी, आपने वुमेन के बारे में बात करी थी, तो दे हैव देयर ओन रीजंस। Yeah, absolutely. So, Our own menstrual cycle में yes. कभी-कभार बैक पेन स्टार्ट हो So जाता है। gynec reasons, urinary infections, अगर periods abnormal हैं, they have endometriosis, they have PCODs, तो वो सब बैक पेन में ऐड ऑन करते हैं। प्लस दे अंडरगो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सो ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको कैल्शियम लॉस करती है। तो ओवरऑल देयर आर, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग, और आपको हर डायरेक्शन से अटैक करना होगा। अगर बैक मसल्स वीक है तो उसको स्ट्रेंथन करिए, अगर बोन्स वीक है तो आप उसको स्ट्रेंथन करिए। अगर उनके पोस्चर सही नहीं है, सपोज समवन इज वर्किंग इन द बैंक लेकिन उनका चेयर सेटअप अच्छा नहीं है, इफ दे वर्किंग टू मच ऑन द लैपटॉप, सो आई थिंक आपको उन सब चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस करना होगा rather than getting a MRI done. I mean, an MRI and an X-ray or showing to me as a surgeon, I think it will not serve the purpose. आपको अपनी lifestyle को modify करना होगा and you will be off back pain. So that's my take on that. So moving on to a little to do with preventive care, and especially with women, especially during menopause and even during our menstrual cycle, but specifically during menopause, a lot of women go through backaches. Yes. So something you want to suggest so that they can at least reduce the pain and not go, वैसे ही psychologically वो इतना know. upset होती है and then pain adds to it. So I think what WHO has really mentioned many things about women who are around menopause. Right. And they have their guidelines. So back pain, of course, there is a real big hormonal change happening. Absolutely. So estrogen is going away. So आपकी बॉडी में जब estrogen कम होता है, Correct. तो वो आपके मसल्स, बोन सब सबके कुछ लिए weak हो रहा होता है। वीकनेस क्रिएट करता है। मेरा सारी वुमेन जो मेनोपॉज के आसपास है, अगर उनको थायराइड है, अगर वो डायबिटिक है, अगर वो ओबीज है, Okay. तो दे शुड टेस्ट बोन डेंसिटी। उनको अपना बोन डेंसिटी वो तो टेस्ट बहुत कराना important है, चाहिए। जो भी मेनोपॉज जैसे ही आपका खत्म होता है, यू शुड चेक। अगर वो लोअर साइड है तो आप उसको करेक्ट करिए। वो आपको बैक पेन, नी पेन, प्लस आपने देखा होगा ओल्ड एज में सब ऐसे झुक गए हैं, तो ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है। Okay. इन सब का ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली प्रिवेंशन इज बेस्ट। Take a medicine तो or आप उसके अलग गाइडलाइंस है। Okay. आई थिंक वी शुड नॉट गो इन द डिटेल कि -2 स्कोर है तो क्या होगा, -3। हाँ, but on an average they बट should. आप ऐसा सोचे ना कि कोई भी कहता होगा आपकी हड्डियां कमजोर है। आई मीन यस, ऑफ कोर्स कमजोर इज अ ब्रॉड वर्ड, लेकिन उसकी एक वैल्यू होना जरूरी है। Correct. कि उसके whether लिए- it's 0, 1, -1, Right. और उसके बेसिस पे उसको ट्रीट करना चाहिए। सो आई थिंक बिकॉज बच्चों में भी अनदर हाँ, I रीजन was going to ask you that कि बच्चों में क्या उनको करना चाहिए? बच्चों में तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। आई थिंक आउटडोर जाना खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। आई नो। अभी वो मे बी बिकॉज ऑफ कोविड या गैजेट्स या जो भी रीजन है, अभी बच्चे सब अंदर हैं, सारे ग्राउंड खाली हैं। Correct. सो आई एम मतलब मैं कई बार है ना हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि आज उदयपुर में इतनी सारी स्पोर्ट्स एकेडमीज खुल गई हैं। पीपल कैन प्ले बैडमिंटन, Correct. स्विमिंग Yeah. कर सकते Swimming हैं, कर सकते हैं, cycling, running, there's so much to do. बिलीव मी, इन द लास्ट 5 years ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। Oh, absolutely. तो मैं पेरेंट्स को ये पुश करूंगा कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करें। स्पोर्ट्स केवल आपको फिजिकली नहीं, Correct. मेंटली Mentally तो बहुत impactful बहुत होता स्ट्रांग है, yeah. बनाता है।
मतलब उसमें आप जब अच्छा नहीं खेलते तो आप अपने आप को कर्स करना सीखते हो. So this is one thing which only sports आपको सिखाएगा. राइट. और मुझे लगता है कि बच्चों पेरेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए तो बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो कर देंगे. Obviously, I think उसके लिए पेरेंट्स ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं तो अपने मोबाइल को खेलता रहूं और बच्चे को मना और उसको कर बोल रहे कि तू जा कर. हाँ, So वो तो you have to set an पॉसिबल ही example. नहीं है. इसमें तो करेक्ट कोई doubt ही नहीं. करेक्ट करेक्ट. Yes. So moving on to a lot of advancement, I obviously spoke about this earlier also कि सर्जरी, स्पेशली स्पाइन सर्जरी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, Yes. रोबोटिक्स यूज हो रहा है. So how much role has this played in improving the precision of the surgery and also कि वो पोस्ट केयर, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर Yes. होता है, क्या वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है? So if you ask me, तो 2015 द वर्ल्ड स्पाइन सोसाइटी, पूरी वर्ल्ड की जो स्पाइन सोसाइटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारी थीम एक होगी कि हाउ टू इम्प्रूव सेफ्टी इन स्पाइन सर्जरी. ओके. सो अगर एज अ पेशेंट, हर पेशेंट को ये डर होता है कि मैं पैरालाइज तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे कोई लकवा तो नहीं हो जाएगा. सो जितना भी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं. ओके. सो मुझे कई बार है ना पूछा जाता है कि सर ये इतने इंसिशन से होगा, या इतने इंसिशन से होगा, ये कितना छोटा कट लगेगा. तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि सर्जरी की इंसिशन से ज़्यादा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई नर्व इंजरी ना हो. हाँ, करेक्ट. वो डैमेज ना हो. एग्जैक्टली. एंड सेफ्टी के लिए हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि दो चीज़ों ने पूरी सब कुछ चेंज कर दिया है इन द लास्ट आई वुड से 10 years. ओके. द वन इज इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग. तो जैसे सपोज कोई पेशेंट ऑपरेट हो रहा है, अभी तो एनेस्थेटाइज है, तो वो तो सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है. हाँ. तो आप उसको तो नहीं कह सकते तू पैर हिला, मैंने सर्जरी चल रही है, हाँ. हाउ विल आई चेक. या वो तो जब एनेस्थीसिया से बाहर आएगा आएगा तब आपको पता चलेगा. हाँ. सो इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग इज समथिंग जिसमें आप ड्यूरिंग सर्जरी जैसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं, वैसे आप उसकी नर्व भी चेक कर रहे हैं. ओके. वाओ. अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है या कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे वो परेशान रहे या उसको कोई वीकनेस डेवलप हो, वो आपके मॉनिटर्स विल पिक इट अप एंड आप उस चीज को वहीं पे उसी टाइम ड्यूरिंग सर्जरी करेक्ट कर सकते हैं. Oh wow. So that is huge. I mean that's very such big a change. yeah. And fortunately intraoperative neuro monitoring now is available in many centers and of course we have it yours here. right. So उससे especially जो complex surgeries हैं, Yeah. उसमें हमें बहुत बड़ा एक safety profile मिल जाता है. और आपको आपकी सक्सेस पता चल जाती है कि what has Exactly. worked. Oh And yes. I won't say कि zero complication, of course obviously, but ये पक्की बात है कि मैंने तो दोनों चीजें देखी है अपने ट्रेनिंग पीरियड में, बिना भी और उसके हाँ of course. तो बहुत बड़ा चेंज है. हाँ. एंड हो सकता है कि वी में बी स्वेटिंग राइट नाउ बट वी आर स्वेटिंग लेस इन द ऑपरेटिंग रूम. तो हम ऑपरेशन थिएटर में बहुत कम स्वेट कर रहे हैं बिकॉज़ दैट मॉनिटर हेल्प्स अस. Yes, of बट course. अल्टीमेटली आप टेक्नोलॉजी कितना भी ले आए, यू नीड अ गुड पायलट Yeah, of course. एंड अ वेल ट्रेन्ड पायलट ओनली कैन रन दैट प्लेन. Land Land it safely. safely also. So one is that. The second thing जिसने spine surgery को accurate बनाया, जैसे मैंने आपको safety के बारे में बताया, Correct. which is Yeah. neuro monitoring. Accurate बनाया वो है O-arm. O, the alphabet O arm. yeah. Okay. So हम just to explain simply कि अभी तक हम सारी surgery C arm में करते थे. अच्छा. Like a C, जो हमें एक ऐसे व्यू देता था और एक ऐसे व्यू देता था. Just 2 dimensional. Okay. The O-arm is like a O. 360 degree. So 360 डिग्री वो ड्यूरिंग सर्जरी सीटी स्कैन रन करता है. अच्छा. Okay. सो दैट इज 100% एक्यूरेट डाटा जो एक नेविगेटर में जाता है. एंड देन यू हैव दोस लाइक वीडियो गेम, यू हैव इंस्ट्रूमेंट्स इन योर हैंड जिनके बेसिस पे आप सर्जरीज करते हैं. Okay. सो स्पाइनल सर्जरी में फिक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कहते हैं स्क्रूज लगाना, रॉड्स लगाना. सो O-arm डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एरिया में उसको एक्यूरेट करता है. नंबर Okay. 1. सेकेंडली अगर आपने कोई सर्जरी करी है जिसमें आप कहते हैं ना नस पे दबाव हटाया गया, तो आप सर्जरी खत्म करके एक स्पिन और ले सकते हैं टू कंफर्म कि मेरे स्क्रूज राइट है, राइट है कि नहीं, मैंने नस पे पूरा दबाव हटाया कि नहीं हटाया. अच्छा. सो एक्यूरेसी एंड कंप्लीशन दोनों चीजें O-arm सर्टिफाई करता है. ओके. सो उसका नेक्स्ट लेवल इज रोबोट. सो कमिंग अप सून. अभी स्पाइन सर्जरी में कुछ रोबोट्स आए हैं बट दे आर वेरी अर्ली स्टेज. ओके. सो ये जो डाटा O-arm का है, unlike the other knee Yes, and joint exactly. and hip. Because knee has been there for many years For many now. years, So right. अब वो एक
रिफाइंड रोबोट है एंड रोबोट का मतलब ये नहीं समझ में आया कि हम ओटी के बाहर बैठते हैं और रोबोट अंदर करता है. करेक्ट, ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि रोबोट ही सब कर रहा है. सो रोबोट असिस्टेड सर्जरी कहते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है. सो नाउ द नेक्स्ट लेवल इज जब ये जो डाटा ओआम ने रिकॉर्ड किया है वो एक रोबोट में फीड होगा एंड दैट रोबोट विल हेल्प यू मोर एक्यूरेटली. सो अभी वो बहुत फर्स्ट जनरेशन Okay. है, तो मे बी टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस करती है. लेकिन इतनी सारी जो टेक मैंने डिस्कस करी उसके बावजूद वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ट्रेनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स. सो मुझे लगता है कि जो भी स्पाइन सर्जन बनना चाहते हैं या कोई भी ब्रांच में एक्सेल करना चाहते हैं सुपर, उनको ट्रेनिंग को एडिक्वेट टाइम देना चाहिए. Absolutely right. That is most important. Yeah, and because इतना sensitive area Yes, है, yes. it controls everything. And the margin of error is very less. Okay. हाँ, because आप not to say कि कोई orthopedic surgeon is any less, Yeah. but एक अगर forearm fracture जो मैं भी ऑपरेट करता था एक जमाने में, तो वो comparatively stress less है. लेकिन वही मुझे जब nerves के within millimeters screws लगाने हैं correct. या instruments handle करने हैं, तो Right. मतलब even in school when we saw the spine diagram, we knew there was a skeleton to it, but there were so many other things also in it. वो diagram ही इतना complicated लगता था, तो you to actually see it. yes. And इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दी कमिंग इयर्स एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, बिकॉज आज आई एम सिटिंग इन उदयपुर एंड अगर मैं ओआम यहाँ इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इंडिया में देयर आर ओनली 30 इंस्टॉलेशंस. Okay. सो वी आर अमंग द फ्यू. Okay. जो the early few, right. बट with time it will spread all around. I'm because sure. ये एक new technology है. Right. This started in 2019 in India. Right. So it's not very old. 3-4 years से ही आया है. But our experience is extremely high level. Okay. The accuracy has changed. जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैंने इसके पहले भी काम किया हुआ है. I'm now working with it. It's a big difference. Right. But then I guess for any new surgeon, the advice that you would want to give is work on your training. Yes. Yeah. And a good part is that now India has a very big number of hospitals. Right. Which are and working on very spines. well trained surgeons. Right. So training is easy. Because मैं अगर बात करूँ 2000, आप तो खुद कितने countries गए for a but training? if you ask me 2004 में we had limited options. Okay. So मैं KEM हॉस्पिटल मुंबई बहुत फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ एक स्पाइन यूनिट थी, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ 2 साल काम किया. उसके बाद 2 साल अमेरिकन हॉस्पिटल में जॉब करने के बाद बीच में मेरे को ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन आया, तो मैं 6 महीने ट्रेनिंग के लिए गया. Right. But उस you time had to पे- fly all the way to Yes. there, right? आज you have amazing institutes, cadaveric labs, technology, सब कुछ there is there in India. Right. Training is very easy Right. for a surgeon. Of course, then they have to make that effort. Of course, absolutely. Obviously, I mean, it's a And- choice that you make how much you want to train And yourself, right? Even we are learning. Yeah, of course. मतलब मैं इतने सारे वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वो सीखने जाते हैं. हाँ, absolutely. Yeah, because, Right. I know. So coming back to patient, I feel कि knee और hip में तो फिर भी एक awareness आ गई है. People do understand कि knee में अब ये operation होता है, ये इस तरीके का material use होता है. But in spine, our knowledge as a layman is very poor. Okay. I'm sure you would experience that. Yes. तो कभी कभार वो टेक्निकलिटी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो I know. जाता है, तो बस वो एक हो गया आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है. डू यू थिंक नाउ दिस इज इम्प्रूव्ड, या आपके लिए अभी Yes. भी एक चैलेंज रहता है कि आपको वो एकदम लेमैन तरीके से उनको समझाना पड़ता है? So मैं उसके लिए YouTube, Google, उसको थोड़ा थैंक यू बोलता हूँ कि जब पेशेंट एक्चुअली सर्जरी के लिए डिस्कस करने आता है तो वो कुछ तो पढ़ के आया. हाँ, करेक्ट. हो सकता है मुझे उनकी वो नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़े, बट ग्रॉसली समझाना आसान होता है. बाय एंड लार्ज कुछ मॉडल्स हम रखते हैं अपने साथ, just हाँ, to जिससे आप explain कि क्या- समझा सकते हैं. एंड मेरा एक रूल है कि मैं अपने आप को एज अ पेशेंट इमेजिन करके समझाता हूँ, Empathy बनकर develop बिल्कुल करना. सिंपल लैंग्वेज में. एंड आई आस्क देम अगेन कि आपको कुछ और नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपकी लैंग्वेज में आपको समझने की कोशिश करूंगा, करेक्ट. बिकॉज वो एक मेरे ऊपर एक फेथ कर रहे हैं एब्सोल्युटली. टू डू दिस प्रोसीजर. Yeah. सो आई हैव टू बी 100% ट्रूथफुल टू देम, एंड मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो आधी इंफॉर्मेशन के साथ में या आधे जिनकी वधु सारू थी जैसे, और ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन दे के उनको ऑपरेट करूं. जो भी एक सर्जरी के प्रोज कॉन्स, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, Right. हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है जिससे हम उसको कम कर सकें, वो सब डिस्कस करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, आई एम श्योर यू नो सो मच अबाउट काउंसलिंग, उसके बाद ही वी कम टू अ डिसीजन. एंड यू वोंट बिलीव, पहले मुझे लगा कि ये शायद सिटी के पेशेंट्स को ही इतना आइडिया. नो ऑफ कोर्स नॉट.
हाँ. आप अगर गांव से भी यस यस Wow. इवन अ टीचर फ्रॉम समवेयर नियर सागवाड़ा, उनको मालूम है. अब या तो वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और एनीथिंग. I think Yeah. probably technology has a Yes, lovely yes. role to play in terms of awareness. 100%. एंड मुझे कई बार कहते हैं कि अरे ये गूगल ही वो, यू वोंट बिलीव, मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया लखनऊ में सर्जरी करने. हम कुछ कुबड़ बच्चों की फ्री सर्जरी करते हैं तो वो करने. हाँ. तो जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने रूम के बाहर लिखा था, थैंक गॉड गूगल कैन नॉट ऑपरेट. I like that. तो मैं कहा या सर, at times I feel that. Yeah. But when at times I think for a patient. Yeah. ये तो हमने हमारा point of view हाँ, रख दिया. correct. But for a patient it's actually It's helpful. Yes, yes, yes. Right. And मैं यहाँ बैठा हूँ ना उस information को correct करने के लिए. It's not a fight between me and Google. Correct, Of course. absolutely. As a unit, we can help the patient and that's our target. Right. At the end of the day, they should do well. Right. Yeah. सर, आपने अभी एक जगह मेंशन किया था कि आप एक एनजीओ से कनेक्टेड हैं वेयर आप जिन बच्चों को कूबड़ होता है, वेयर जिनकी स्पाइन में एक डिफॉर्मिटी Yes. होती है, आई वांट टू नो लिटिल मोर अबाउट इट कि आप उन बच्चों के लिए वो फ्री ऑपरेशंस करते हैं. Yes. पैन इंडिया. Pan India. Okay. I mean, it's like on the platform. हाँ. So मैं जब अपना ऑस्ट्रेलिया से फेलोशिप खत्म करके आया 2008. ओके. So I met a girl. I don't tell their names because we don't want to tell that. तो वो मेरे ऑफिस में आई एंड सेड कि उसको ऐसे एस शेप स्पाइन था. ओह. She's hardly 14 year old. Oops. तो हमारी लैंग्वेज में उसको AIS कहते हैं, एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, बट आप उसको स्कोलियोसिस कह सकते हैं. Okay. या जैसे कुबड़ कहते हैं. कूबड़ जो एक कि वो टेढ़े सिंपल हैं, लैंग्वेज में हो हाँ. जाएगा. तो आई थॉट दैट, बट देन हर फादर वाज नॉट देयर. ओके. सो आई थॉट दैट कि ये बच्ची को सर्जरी भी चाहिए एंड फाइनेंशियली कॉस्टली एक्सपेंसिव. सर्जरी. यस यस. तो फिर हाउ टू डू इट, तो तब मुझे एक आइडिया है कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ ट्रस्ट. ओके. सो सेवा मंदिर से आई हैड लॉट ऑफ अच्छा. हेल्प एंड वी स्टार्टेड अ ट्रस्ट कॉल्ड SACT, सेव अ चाइल्ड ट्रस्ट. ओह लवली. दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन अमेरिकन हॉस्पिटल. ओके. फिर मैंने छोड़ दिया वो. एंड 2013 में जब मैंने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया, श्रीराम स्पाइन, सो आई थॉट मुझे जो भी हमने वहाँ थोड़ा सा कर पाए थे, बट उसको आई वांट टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल. या ऑब्वियसली गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. या सो हमने एक ट्रस्ट स्टार्ट करी, कुब्जा. अच्छा. सबको कुब्जा के बारे में पता है. हाँ. हम हमारे में कृष्ण भगवान को फर्स्ट स्पाइन सर्जन कहते हैं क्योंकि उन्होंने कुब्जा को हाथ लगाया और वो कुबड़ करेक्ट हो गया. यस यस So हम यस. कहते हैं अच्छा. कि- हाँ, So दैट्स हिंदू सच अ मैथोलॉजी में हमारे लिए तो वो फर्स्ट स्पाइन सर्जन. तो इसलिए मुझे लगा ये नाम अच्छा है और इसको स्प्लिट करते तो कूब एंड जा. जा, तो करेक्ट. कुबड़ चले जा So like it's our that. website kubja.org. उस पे in the last 10 years ओके. हम approximately 130 बच्चे फ्री ऑपरेट कर चुके हैं. And these are complex surgeries. Absolutely. हमें नारायण सेवा संस्थान and many other people are हाँ supporting हाँ, us. करेक्ट. So ये मेरी अपनी ट्रस्ट है. ओके. एंड एनीवेयर अगर कोई बच्चा है इंडिया में जिसको कुबड़पन है और फ्री सर्जरी की जरूरत है, ओके. तो फ्री क्लिनिक्स है उनके लिए. Okay. आप कभी भी आ सकते हैं. So you're affiliated with various hospitals and these people can go to those hospitals? So all these surgeries are done in my hospital. अच्छा. ओके. So any children from anywhere Okay, they can to us. come here. Oh, okay. उनका कंसल्ट फ्री है क्योंकि हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हम इस बच्चे को सेफली ऑपरेट कर सकते हैं, correct. क्या, या हमें अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है, Yeah. हमें उसे ब्रेस देना है. बट देन इन शॉर्ट ये एक ट्रस्ट है जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट. I'm sure it is. एंड हम वेरी सिंसियरली वी आर डूइंग दिस एंड आई होप कि हम और बच्चे इसी तरह ऑपरेट करते रहें. सो अगर कोई भी पेशेंट, किसी का नोन, किसी का स्टाफ, कोई भी जिसको ओपिनियन भी लेना है कि क्या अभी कोई intervention ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं. या राइट. सिर्फ ब्रेस से काम चल जाएगा या पट्टा कैसे काम, तो वो आ सकते हैं हॉस्पिटल. राइट राइट. तो फ्री कंसल्टेशन, फ्री एक्सरेज, सब कुछ फ्री. Right. So kubड़ is something or scoliosis, scoliosis, yeah. right? क्या ये are you born like that? और क्या कोई और भी ऐसी deformities होती है that in the spine that you are born with it, like how Yes, you have yes. juvenile problems हो So सकती है? ultimately everything is in the genes. सब कुछ जेनेटिक है. बस वो तो है. इवन जिसको 60 ईयर पे कोई डिजीज डिटेक्ट हो रही है ना, वो भी कह रहे कि इट इज हाँ, जेनेटिक. genetic, absolutely, yeah. बट एक इन्फॉर्मेशन मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगा कि जो माँ अभी बच्चे को पाल रही है पेट में, womb में जो womb है, में हाँ, प्रेग्नेंट है, pregnant, right? तो 12 से 16 हफ्ते पे Okay. सोनोग्राफीज में अच्छे सोनोलॉजिस्ट रीढ़ की हड्डी में अगर कोई कुबड़पन है अच्छा. या उसके नस में अंदर कोई डिफेक्ट है, उसको सोनोग्राफी पे डायग्नोस कर सकते हैं. Oh wow.
एंड उसके बेसिस पे अगर कई सारी ग्रेडिंग्स हैं, बट एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट मैं एक मदर को या उसकी फैमिली को बता सकता हूँ कि क्या आपको इस बच्चे को कंटिन्यू करना चाहिए Okay. या उसको इतनी खराब एनॉमलीज हैं कि इट विल बी बेटर कि वो बच्चा वर्ल्ड में ना आए. सो एनॉमली स्कैन कहते हैं जिसको, एंड मुझे लगता है कि इट विल बी अ बिग इंफॉर्मेशन. Absolutely. एंड सोनोग्राफी की मशीन अच्छी होना और एक एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट इसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है. Okay, but that's quite informative. So secondly, मैंने बहुत लोगों को ये सोचा, you know, स्पेशली जब सर्जरी करा लेते नी, हिप या स्पाइन की भी, उनको ये लगता है कि पहले मैं जैसा था एकदम वैसा ही हो जाऊंगा. यानी पहले अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ लेता था, न्यू ऑपरेशन के बाद ऑल्सो आई शुड बी एबल टू रन 10 kilometers. Yes, I agree. I'm not saying that it is wrong. They can, but it may not be. You cannot go back to your original. Absolutely. How true that is? That is So- कि ये एक myth है which needs to be demythified. आई नो. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा डॉक्टर्स भी एट ब्लेम है. सो आपने अभी सोशल मीडिया देखा होगा. सो हर जना क्लेम करता है कि आई एम द बेस्ट सर्जन, Yes. मैं बेस्ट हूँ, मैं Correct. बेस्ट इसका हूँ. Yeah. सो हमने पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई कर दिया है. Correct. सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक. मैं वो नहीं दे सकता जो वो हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डॉक्टर एंड एज अ सर्जन. ये मेरा मतलब इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं पेशेंट को ये जरूर समझाऊं. ये आपका कि- एथिक्स है. यस, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एज अ मेडिकल एथिक कि मैं पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसको कहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स रह सकती है या क्या क्या कमियां रह सकती Correct. है. Yeah. मैं वो बिल्कुल नहीं क्रिएट कर सकता जो आप आज से 10 साल पहले पहले या थे 20 या साल और पहले ऑफ द वे यू वर बोर्न. इट्स नॉट पॉसिबल. टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगी, मेरा एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगा, लेकिन वो चीज नहीं बनाई जा सकती. एंड बिलीव मी, 100% सर्जन, रिस्क फ्री सर्जरी and all that Or go back to exact normal, it doesn't work, so right? हम सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे या whatever we are doing, so मुझे लगता है कि there is some fault on our part also. So I'm sure exercise is one of the most preventive ways for most of the health Yes. diseases. But हम, you know, muscle के लिए तो obviously we have lot of Yes. exercises. क्या spine related भी कुछ spine strengthening exercises हैं? So can you tell me a little more So, about that? मुझे ऐसा लगता है because हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है. So spine is our central pillar. Right, absolutely. And उस पिलर में there are bones, There's a, उनके बीच में there are discs, right. inside there is nerve. Very important. Very important. Because nerve उसके अंदर है. It's not like this hand की वह ऊपर है नीचे ऊपर है. है नीचे correct. And then there is a muscle structure around Around it, it. right. वो उसके लिए एक कवच है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है. सो ये चारों चीजों को आपको अच्छा रखना है. सो अगर बोन्स को अच्छा रखना है तो आपका न्यूट्रिशन, Yes. नर्व्स को अच्छा रखना है तो अगेन न्यूट्रिशन, B12, गुड हैबिट्स, Right. दैट विल हेल्प. Yes. Basic breathing also sometimes helps in nervous प्राणायाम को क्यों इतना अच्छा एक्सरसाइज मानते हैं? एंड ऑफ कोर्स मसल स्ट्रक्चर. हाँ, उसके लिए तो बेसिक. सबको लगता है स्पाइन में तो बोन्स ही हैं, बट बिलीव मी, आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मजबूती और उसका लचीलापन ही आपको बचाएगा. ओके. हाँ. और एक्चुअली कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो आपको स्ट्रेंथ देती है और कुछ एक्सरसाइज देती है जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है. तो आपको वो दोनों चीजों को कंबाइन करना. और अगर कोई एक चूज करना चाहता है तो वो योग करे. ओह अच्छा. हाँ, बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ बोथ. Yes, योग एक परफेक्ट एक्सरसाइज है. एंड ब्रीदिंग सब एज ग्रुप कर सकता है, ये भी एक एडवांटेज है. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो 20-year-old है वो कहता है योग तो हमारे लिए नहीं है. हाँ, हम तो जिमर्स हैं. हम जब स्कूल सेंट पॉल में पढ़ते थे तो थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि हम सब योग करके निकले. एंड हम सबको शीर्षासन आता है. एंड स्कूल डेज नेति कुंजल सबने किया है. एंड सेंट पॉल्स में कभी योगा हो तो कंपलसरी थी. सो मुझे ऐसा लगता है कि योग हर एज ग्रुप के लिए. एग्जैक्टली. आई डोंट मीन कि आप मंडे टू संडे योग करिए. हाँ. अगर कोई चाहता है कि मैं अपने बीच में और हाँ, भी कुछ और भी है ना, कहते भी है ना, यू शुड कीप चेंजिंग योर एक्सरसाइजेस. क्रॉस ट्रेनिंग जिसको कहते हैं. बट 2 times a week आपको योग करना चाहिए. ओके. एंड प्राणायाम रोज करना चाहिए. राइट. वो आपके लिए बहुत बड़ा एक हीलिंग फैक्टर है. राइट. सिर्फ फिजिकली नहीं,
even in your mind. Mentally, absolutely. So it gives you peace. तभी I think yoga is called holistic exercising that you do for And the that's why mind the and whole the world body. is after it. Oh yes, absolutely. In fact, मुझे लगता है कि Indians ही पीछे रह गए. हाँ. The Western world is patenting certain asanas. I know. So it's so unfortunate. But that is in many things. I guess. But anyway, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कहीं बाहर नहीं जा सकता, बहुत हेक्टिक जॉब में है, किसी की बैंक जॉब है एंड वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब मुझे भी बोलते हैं कि हमारा टाइम नहीं है. मैंने कहा मैं भी 5, 5:30, 6 बजे उठता हूँ, मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, तो टाइम तो आप निकाल सकते हैं. हाँ. लेकिन फिर भी नहीं निकाल पा रहे. आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो योग करिए. आपको एक रग चाहिए, मैट चाहिए. Correct. So like they say, na, everything is expensive until you fall ill. Yes. Then your medical bills are so Exactly. expensive. So why go into that phase? And the bills and plus आपका पूरा family structure change हो Oh जाता yes, है, work loss, absolutely. Right, so many things. right. Yeah. And I feel no illness is a individual illness. Yes, It obviously yes. impacts Oh, everybody obviously. around you. Yes. वो True. mental हो या physical हो, True. anything like that. Absolutely. Right. And of course, pain, illness, इन सबका एक बहुत important part mind. Psychological. Yes. So in fact, so we as psychologists consider pain very psychological. कि अगर आप ध्यान दोगे तो दर्द होगा. अगर आप Exactly. distract हो जाते हो डांस करते हुए तो याद नहीं आता मेरे जोड़ों में दर्द है. And the minute you come back home you say hi आज knees pain कर रही है. So it's sometimes very in our conference हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं हम spine surgeon या we are now spine psychologists. that So because sometimes with normal MRI right. and normal investigation patients को बहुत pain होता है. हाँ. So then instead of a spine specialist I become a spine Yeah, psychologist. because even going into that MRI, Yes. I mean, in spite of being a psychologist and I've been able to work on my fear, but Yes. yes, it was a claustrophobic feeling Yes, for me yes, and yes. बहुतों के लिए होता होगा. Yes, बहुत सारों के लिए होता है. Right. But I think MRI is a good investigation, but early MRI is a bad investigation. Okay, अच्छा कुछ ज्यादा ही ओवर डायग्नोसिस हो जाता है. शायद मैं आई एम 48 एंड मैं भी MRI कराना चाहूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ डिस्क ऐसा कुछ नजर आ जाएगा, जबकि मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है. आप कराएं या हो सकता है हमारे कैमरा पर्सन कराएं तो उनके भी आ जाए. सो आई थिंक MRI समटाइम्स ओवर डायग्नोसिस. हाँ, वो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है. ओके, ग्रेट, राइट. सर, एनी लास्ट टिप फॉर समबडी हु वांट्स टू बिकम a spine surgeon like you? Maybe 1 or 2 tips. So Training was one of them. I think passion is the biggest. हाँ, वो तो है, of course. Because spine surgery as a specialty, अगर orthopedic surgery करने के बाद कोई choose करे तो सबसे पहले people will take joint replacement, then they will take sports medicine, फिर वो कहेंगे चलो pediatric orthopedics ले लेते हैं, फिर कहेंगे hand surgery ले लेते हैं, फिर लास्ट में कोई आएगा कहेगा यार now I should go into spine surgery. अच्छा, okay. Because learning curve is long, Very much training long. is more rigorous. And you need a lot of experience. The stress levels are very high when you're operating. Oh, And yes. spreading like anything if even in a surgery if it's not going well. Oh. So इसीलिए you have to have passion for that work. Because the surgeries are longer. It's not like other surgery जो half an hour, 1 hour में होते हैं. What's been the longest surgery that you've done, sir? 14 hours. Oh my. So ऊपर बच्चों की सर्जरी जो होती है हाँ, वो उनके लिए बहुत तो लंबी चलती हाँ, है. जो आपने बताया भी जिसका S shape था तो Yes. कितना. So उनकी सर्जरीज काफी लंबी. Right. So obviously you need the passion. Yes, passion and training. And training. I think the combination of yes, two. and training भी ऐसा नहीं कि मैं अभी पास हुआ, मैंने 1 साल ट्रेनिंग करी and I'm done. No, it's a process. It's a journey. Yes. Right. And I think also a lot of patience maybe. So it will automatically come because when you are doing spinal surgery, you cannot be rough, you cannot be fast. You have to go very slow. Very simple, small. Yeah. So you have to take small steps and very lot of precision. Right. So that patience automatically comes. Yeah. So I'm sure a lot of surgeons know what they need to be ready for if they want to get into this, Fair right? enough, Right. yeah. So it was a pleasure talking to you. So many things I didn't know about spine and spine surgeries that I Sure. came to know today. Thank you so much for Thank joining you. me today. And thank you very much. Thank you. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.